Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Ania Wahid, and in this video we are going to discuss the chapter number 7 of class 10, and we have discussed about the exercise 7.1 in the previous section. Now we are going to start our exercise number 7.2. So in the exercise number 7.2 you are solve a question with a formula, and the formula is L is equal to R theta. So in every question of 7.2 you will use this formula. So here in this formula, L is the length of your circular arc, length of arc. R is the radius of your circle, and theta is the angle, central angle of your, this is the angle of your radian. ठीक है, but now before we are going to start our questions, firstly I want to define, or I want to prove this formula, that how this formula came. Okay, so before proving this formula I tell you that what is the arc. Okay, and I will tell you what are the parts of a circle. So first of all, let's define what is a arc. So actually, arc is a part, or is a segment of a circumference of a circle. So what is the circumference of a circle? So this round whole path of a circle is called circumference, and arc is the part of it. So a part of circumference of circle is called an arc. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट of a circle, and now I choose any part of this circumference of the circle. Let's suppose I choose this part and to this part. So I give these point name, like this is the A point, this is the B point, and this is the point O, which is the central point. So from here to here, so this is the part I have chosen, a part of circumference. This is the whole circumference, but from A to B I have choose a part of this circumference of a circle. So this part is called as a arc of that circle. Now let's discuss what is the segment of a circle. So segment is, let's suppose I have drawn a line between the A and B points, and I have matched them. Now this whole shaded part, let's see it. So this shaded part consists of two elements. First, this line which I have drawn, this is called as a chord. This is called a chord. So what is a chord? So chord is a line which is drawn anywhere except the diameter. ठीक है, यहाँ diameter के अलावा अगर आप कहीं और यहाँ पर मैं लाइन लगाऊँ, या यहाँ पर लाइन लगाऊँ, या यहाँ पर लाइन लगाऊँ, या यहाँ, ये सब आपके चौड़ हैं जिन पे मैं ये डॉट लगाती है, लेकिन आपके डायमीटर नहीं होगा. सो ये एक चौड़ कहलाता है. और चौड़ और एक ये आर्क है. ठीक है, एक आर्क और एक चौड़ जब आपस में मिलते हैं तो वो एक सेगमेंट बनाते हैं. तो अब यहाँ पर ये शेडेड पार्ट सर्कल का सेगमेंट है. सो दिस इज द सेगमेंट of this particular circle. So how you define the segment? You can define that it is a part of circle which is bounded by a chord and a arc. ठीक है, so ये आपकी segment of a circle की definition हो गई. अब हम देख लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है. सर्कल का सेक्टर क्या होगा. लेट्स सपोज कि मैंने अगेन एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, और मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ. सो ये जो अब ट्रायंगुलर पार्ट है, इसको मैं इस तरह से शेड भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए. सो ये जो शेडेड पार्ट अब मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम सर्कल का सेक्टर कहते हैं. सो सेक्टर की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि इट इज़ अ पार्ट विच इज़ बाउंडेड बाय टू रेडियाई. सो ये वाली लाइन भी एक रेडियस है, ये वाली लाइन भी एक रेडियस है. सो दो रेडियाई और एक आर्क मिलके एक सेक्टर ऑफ सर्कल को बनाते हैं. ठीक है, सो ये चीज़ें मैंने इससे समझाई हैं ताकि जब मैं फार्मूला प्रूफ करने के लिए यही वर्ड इस्तेमाल करूँगी तो आप सब लोगों को इन वर्ड्स का मीनिंग पता हो.
ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं फार्मूला प्रूफ। ठीक है, सो उस फार्मूले को प्रूव करने के लिए अगेन मैंने एक बड़ा सा सर्कल में ड्रॉ किया है। ये उस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है और सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक की जो मैं एक लाइन खींचती हूँ इसको मैं एक रेडियस कहूँगी। ठीक है, और मैंने लेट्स सपोज कि एक लाइन मैंने यहाँ तक खींच दी है, सो ये एक एंगल बन गया है, एक रेडियन बन गया है। ठीक है, अब सो ये पूरा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन, या आप सेक्टर भी कह सकते हैं। सो इस वाले पॉइंट को मैं पॉइंट ए का कह देती हूँ, इस वाले पॉइंट को पॉइंट बी का कह देती हूँ। सो पॉइंट ए और बी के दरमियान में ये जो लेंथ एक आ जाती है इसको मैं एल से डोनेट कर देती हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि एक मैंने आर्क यहाँ तक ड्रॉ की है, इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे देती हूँ, बट अब यहाँ पर ए और सी के दरमियान में जो फासला है वो इज़ इक्वल टू आर है। ये जो आर है बिल्कुल इसी को इक्वल आ जाता है। ठीक है, सो इसको मैं 1 रेडियन कहूँगी। ये सेंट्रल पॉइंट ओ आ जाता है। अब ये जो इनके दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, सो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, नहीं है। सो अब हम लोग देखते हैं जी कि ए से बी तक ये एक आर्क है। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, एल। तो आप जब इंग्लिश इसके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि लेट एन आर्क ए एंड बी and the length of this, and it is denoted by the length L, and it is making angle theta at the center of a circle. so फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जो एंगल ऑफ आर्क है ये एक आर्क का एंगल है। ठीक है, ये थीटा एक एंगल है आर्क का। सो थीटा इज द एंगल ऑफ अ आर्क, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ दिस आर्क। एंगल ऑफ, ठीक है दोबारा सुन लें, एंगल ऑफ दिस आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ दिस आर्क। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि ये ए ओ और बी ये एक एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल जो एक एंगल थीटा बना रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसकी लेंथ के। सो नीचे आप लोगों ने इसके प्रूफ करने के लिए लिखना है एम एंगल। ये शो करते हैं कि ये एक एंगल बन रहा है इस तरह का, और कौन सा एंगल है, ए ओ बी, ये एक एंगल है। तो आप लिख दें ए ओ बी एक एंगल है, और दूसरा ये एंगल बन रहा है ए ओ सी। ठीक है, सो नीचे मैंने यूं कर दिया ए ओ सॉरी सो ए ओ सी ये दूसरा एंगल है हमारे पास। हमने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अपनी लेंथ के। सो ए ओ बी की लेंथ कौन सी है, ये वाली एल लेंथ है, मैं एल लिख देती हूँ। और ए ओ सी की लेंथ आर है, सो मैं नीचे आर लिख देती हूँ। ये जो एंगल्स हैं ये थीटा को बनाते हैं। सो अब इन एंगल्स की जगह अगर मैं थीटा लिख दूँ, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो कोई मसला नहीं है, नहीं है ना। सो अब मैं क्या करूँगी, एल को इधर लेके आऊँगी, थीटा को इधर लेके जाऊँगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर आर इससे साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें इस आर को इधर भी और मल्टीप्लाई कर दें आर को इधर भी। सो ये आर से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर आर क्रॉस थीटा या क्रॉस आप ना भी लगाएं, सो आर थीटा इज इक्वल टू एल आपके पास ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना आप लोगों को। सो आर एल इज इक्वल टू आर थीटा ये प्रूव हो चुका है और हम लोग इसका बता भी चुके हैं। ठीक है, सो अब हम लोगों ने जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे और हमने सारे इसी तरह से ये क्वेश्चन प्रूव करने हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में, सो एग्जांपल नंबर 1 हम लोग करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि इन अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो एग्जांपल नंबर 1 में उन्होंने हमें रेडियस दिया है एक सर्कल का और 10 मीटर वो रेडियस है। वो कह रहे हैं हमें फाइंड द लेंथ ऑफ अ आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जब एंगल आपके पास, ठीक है, फिर उन्होंने एंगल हमें बता दिया है कि 1.6 रेडियन एंगल है। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ उन्होंने हमें नहीं बताई है। सो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फार्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो एल हमें नहीं पता है, एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट कर दें 10 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1.6 रेडियन आ जाएगी। सो इन दोनों को जब आप आपस में क्रॉस करेंगे, सो एल इज इक्वल टू 10 क्रॉस 1.6 का डेसीमीटर ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से कैंसिल। सो एल इज इक्वल टू 16 मीटर ये लेंथ आ गई उस सर्कल की। ठीक है, सो ये देखा कि आपने हमने फॉर्मूले में पुट किया और हमने निकाल लिया।
नेक्स्ट इसी एग्जांपल का ये ए पार्ट था, अब हम उसी एग्जांपल का बी पार्ट करने लगे हैं। सो बी पार्ट में उन्होंने हमें कहा फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। दोबारा हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास सेंट्रल एंगल जो है थीटा जो है वो हमारे पास 60 डिग्री होगा और रेडियम हमारे पास 10 मीटर होगा। सो अब हमने लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। सो लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, रेडियस 10 पुट कर दें, थीटा 60 डिग्री है हमारे पास। अब 60 डिग्री को हमने रेडियन में पुट करना है। याद रखना है आपने कि हमेशा जो एंगल है इसकी वैल्यू आपने रेडियन में पुट करनी है। तो 60 डिग्री को आप रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लें। सो 60 डिग्री, जब भी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं सो हम लोग क्या करते हैं, पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इनको डिवाइड करने के बाद जब आंसर निकालेंगे तो पाई और 3 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। इट्स मीन आपने यहाँ पर पाई और 3 रेडियन लिख देना है। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 पाई बाय 3 मीटर लेंथ। ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, सो यही हमारे पास थी एग्जांपल नंबर 1। अब चलते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 में उन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ साइकिल मूविंग ऑन अ सर्कल। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यानी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और वो कह रहे हैं कि रेडियस उसका है 115 मीटर। इफ़ द टेक द रेवोल्यूशंस यानी थीटा हमारे पास जो है उन्होंने कहा है कि रेवोल्यूशन कितनी ली है, वो उन्होंने ली है 3.5 रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब आप लोग देखें रेवोल्यूशन को आपने चेंज करना है। सो 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। ठीक है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 3.5 रेवोल्यूशन किसने के इक्वल होगा, सो आपने 2 पाई रेडियन को मल्टीप्लाई कर देना है 3.5 से। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे, जैसे एल इज इक्वल टू आर थीटा है, सो एल इज इक्वल टू आर है 15 क्रॉस ये पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख दें 2 पाई क्रॉस 3.5। इसका डेसिमल ख़त्म कर दें और इन सब को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा थीटा की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी है। ठीक है, सो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद 105 पाई मीटर ये लेंथ आपके पास आ चुकी है। ठीक है, सो ये थी हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट उन्होंने, अब हम इसी के मुताबिक जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लेंथ और रेडियस आपको दिया हुआ है और एंगल आपने फाइंड आउट करना है। पहले हमने लेंथ फाइंड आउट करनी थी, अभी उन्होंने कहा है कि एंगल फाइंड आउट करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो लेंथ आपको दी हुई है वो है 4.5 मीटर और रेडियस आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, सो अब आपने थीटा को फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला आप लगाएंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो थीटा हमने फाइंड आउट करना है, एल और आर आपको गिवन दिया हुआ है। सो थीटा को जब आप फाइंड करेंगे तो एल और आर हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू एल की वैल्यू पुट कर दें 4.5 और आर है 3.5। इनको जब आपस में डिवाइड कर देंगे आप तो थीटा हो जाएगा आपके पास 1.8 रेडियन। हमेशा याद रखना है थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए, अगर किसी और में वैल्यू है तो आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल लेंथ यही है 4.5 मीटर, बट रेडियस को उन्होंने 2.5 कर दिया है। सो रेडियस क्या है 2.5। सो नेक्स्ट में आप 2.5 पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 पुट कर दिया, अब आपके पास आंसर हो जाएगा चेंज। सो अगेन उन्होंने 1.8 ही रेडियन आंसर दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, जो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1.8 ही आता है, लेकिन जब आप 2.5 की जगह जब आप पहले क्वेश्चन में 3.5 पुट करते हैं तो उसका आंसर फिर 1.28 आता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था उसमें आंसर 1.28 था, 1.8 नहीं था। ठीक है, सो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी ये ठीक किया हुआ है। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चन उन्होंने आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अब आपको थीटा भी दिया हुआ है, अब आपने एल फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने थीटा फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि एल आपने खुद फाइंड आउट करना है। थीटा उन्होंने हमें दे दिया 180 डिग्री, अभी डिग्री में है तो हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और आर हमारे पास है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आर भी हम लोग जो है ना, तो
आर अगर सेंटीमीटर में है तो हम उसको वैसे ही पुट करेंगे, ठीक है। सो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। सो 180 डिग्री है, सो मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई आवर 180 हो जाता है। सो ये 180 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.145 रेडियन, ठीक है। अब यही पुट कर दें आप लोग, तो एल इज इक्वल टू 3.15 और क्रॉस 4.9 हो जाएगा। सो एल आपके पास आ गया 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि रेडियस आपका सेंटीमीटर में था तो लेंथ भी सेंटीमीटर में हमने की है, ठीक है। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में उन्होंने आपको थीटा आपको दिया है 60 डिग्री और साथ 30 मिनट भी। इसको अब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। साथ रेडियस उन्होंने 5 मिलीमीटर अब आपको दे दिए, ठीक है। सो जब आप लेंथ में फाइंड आउट करोगे सो उसको भी आप लोगों ने क्या करना है, मिलीमीटर में फाइंड आउट, जो लिखोगे ना यूनिट वो मिलीमीटर लिखोगे। अब इसको चेंज करना है आप लोगों ने। 60 डिग्री तो देखिए वैसे का वैसे रहेगा, पहले इस सबको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डिग्री को रेडियन में करेंगे। अब 30 मिनट है, तो मैंने कहा 30 मिनट को जब हम डिग्री में करते हैं तो इस तरह करते हैं कुछ, है ना। अब इनको डिवाइड कर लो तो 60 डिग्री, और इनको जब आप डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा और 0.5, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सो आपके पास आ जाएगा 60 पॉइंट अच्छा, तो आपके पास 60.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई और 180 से आप डिवाइड कर देंगे इसे, ठीक है। सो ये चीज़ों को आप लोग कट करेंगे और लास्ट में अपना आंसर आप निकालेंगे। अच्छा बच्चों, तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 1.055 रेडियन, ठीक है। सो इसके बाद अब आप पुट कर दें। सो लेंथ इज इक्वल टू 15 क्रॉस ये आ जाएगा 1.055 रेडियन। सो लेंथ आपके पास आ जाएगी, अच्छा सो लेंथ आपके पास आ चुकी है 15.8 मिलीमीटर, ठीक है। सो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि अब आप आर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो आर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेंथ उन्होंने हमें दे दिया 4 सेंटीमीटर और थीटा उन्होंने दिया 1/4 रेडियन। अब ये रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। सो जस्ट पुट कर दें। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा था, सो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई मसला तो नहीं ना। आर इज इक्वल टू लेंथ पुट कर दें 4 और ये पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो रेडियस इज इक्वल टू 4 क्रॉस 4, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियस इज इक्वल टू 16 और सेंटीमीटर है तो आप भी सेंटीमीटर लिख देंगे, सही हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि अब आपके पास जो लेंथ है, लेंथ उन्होंने हमें दे दी है 52 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास अब 45 डिग्री आ गया है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, पाया और 180 हो जाएगा। इनको जब आपस में सोल्व करोगे ना तो पाई/4 आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपने लेंथ की जगह 52 पुट कर देना है और यहाँ पर आप पुट करेंगे पाई/4, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 52 क्रॉस 4 और नीचे पाई आंसर आ जाएगा। सो अब आप इन सब को सॉल्व कर लेंगे। लाइक मैं पुट करती हूँ वैल्यूज़ और सॉल्व करती हूँ। सो जो रेडियस का आंसर आता है आपके पास वो होता है 66.2 और सेंटीमीटर साथ आप लिख देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। सो यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने कहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस उन्होंने दे दिया आपको 12 मीटर। फाइंड द लेंथ, लेंथ आपने जी फाइंड आउट करनी है ऑफ एन आर्क विच सबटेंडेड एट द सेंटर एंगल, और एंगल आपके पास उन्होंने दिया हुआ है 1.5 रेडियन, ठीक है। सो सिंपली एल आपने फाइंड आउट करना है तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और 18 मीटर आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 1.5 क्रॉस 12, सो 1 पॉइंट नहीं आएगा, 18 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा लेंथ का, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। सो अब आपका रेडियस कितना है, 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल इफ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन। सो सिंपली यहाँ पर 3.5 रेवोल्यूशन दे दिया। अब हमने इस रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है रेडियन में। सो मैंने सिंपली आपको पहले बताया था कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। हमें कितनी रेवोल्यूशन निकालनी है, 3.5। सो 3.5 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होंगी, तो 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दें 3.5 से। सिंपली अब फार्मूले में आप लोग पुट करते जाओ। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। सो एल इज इक्वल टू आर क्या है आपके पास, 10, 2 पाई क्रॉस 3.5 पुट कर दें। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। हाँ जी, सो लेंथ आपका आंसर आ जाता है 219, ठीक है, मीटर। सो 219.9 आ जाता है। सो ये तकरीबन लेंथ आपकी 220 मीटर जो है वो हो जाएगी, तकरीबन सेम ही आंसर बनता है, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने एंगल यानी जो थीटा है वो अब आप लोगों ने फाइंड करना है और फार्मूला ये नहीं लगना है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने थीटा फाइंड आउट करना है 2 वॉच की हैंड्स में। सो यहाँ पर एक वॉच है कुछ इस तरह से और वहाँ पर 3 बजे हुए हैं। जैसे यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, तो इस तरह से 3 बजे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें आपने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब आप लोग देखें कि ये एक वॉच है और वॉच एक सर्कल की तरह होती है और वॉच के अंदर अगर एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री हैं तो वॉच के सर्कल में भी 360 डिग्रीज होंगे। सो आप 360 डिग्री पुट करेंगे, नीचे आप लोग पुट करेंगे 12 पे, क्योंकि फर्स्ट जो ये है रे वो 12 के ऊपर है, ठीक है। जो हैंड क्लॉक की जो एक होगी वो 12 पे होगी और एक 3 पे होगी। सो आपने 12 से इसको डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, ठीक है। सो इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। बेशक आप कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करके देख लें। सो ये 90 डिग्री आपके पास इसका एंगल आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, 90 को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने हमेशा रेडियन में देनी होती है। सो 90 को इजीली आप पाई आवर 180 से कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा पाई आवर 2 रेडियन। सो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सो ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन उन्होंने एक सर्कल इस तरह का बनाया हुआ दिया है हमें। इस यहाँ से यहाँ तक वो कह रहे हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस उन्होंने हमें बता दिया है। और ये कुछ इस तरह से जा रहा है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये आर्क पी है हमारा, ठीक है। सो वो अब क्या कह रहे हैं कि ये आर्क है हमारी जो है आर्क, वो है ए पी बी। सो ये ए पी बी ये हमारी आर्क बनती है। और आर्क की वो कहते हैं कि लेंथ हमें नहीं पता है, यहाँ पर लेंथ हमें नहीं बताई उन्होंने, लेंथ को पी बस उन्होंने कह दिया। रेडियस उन्होंने हमें बता दिया है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर हमारे पास है। और एंगल हम लोग खुद देख सकते हैं कि इसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो थीटा हम लोग खुद ही कह देंगे कि 90 डिग्री का एंगल है। सो अब हमने लेंथ उसकी फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा है, आप थीटा को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करें। 90 डिग्री को अभी हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करके आ चुके हैं, जिसका आंसर आता है पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। सिंपली पुट कर दो, लेंथ इज इक्वल टू 8 क्रॉस पाई बाय 2 हो जाएगा। सो सिंपली इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 12.757 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ उन्होंने कहा हुआ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ एंगल थीटा आपको दिया है 84 डिग्री, ठीक है। सो लेंथ आपने जाहिर बात है फाइंड आउट करनी है। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो पाया और 180 के साथ, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4661 रेडियन, ठीक है। सो रेडियन। अब आप लेंथ इसकी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर कर दोगे, लेंथ आपके पास आ जाएगी 17.6 सेंटीमीटर,
अच्छा बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने कहा है कि हमें एरिया बताएं कि एरिया आप लोग सेक्टर का कैसे निकालेंगे। सो उसके लिए हमें पहले फार्मूला देखना है। सो हम लोग फार्मूला देखने के लिए चलते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देखिए, हम प्रूव करने वाले हैं कि फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होगा। सो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैं एक सेक्टर को ड्रॉ कर लेती हूँ। सो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि कुछ इस तरह का सेक्टर होता है। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। सो सेक्टर क्या होता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच इज़ बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई। ठीक है, तो वो सेक्टर होता है। सो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये एक आर्क है और इसको मैं पी का नाम दे देती हूँ। ठीक है। सो अब आप लोगों को ये फार्मूला पुट करने के लिए आपको कोई 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। नीचे आप डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल से। अब सर्कल का एरिया क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इज इक्वल टू आप करेंगे एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। अब आपका जो एक सर्कल का एरिया होता है, यानी एक पूरे सर्कल का एरिया, वो आपके पास आता है 2 पाई के इक्वल। ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर आपके पास, ये जो एक सेक्टर है इसका एंगल थीटा होगा कोई भी, सो आप इसकी जगह थीटा पुट करेंगे। अगर आप एंगल ऑफ सर्कल की बात करते हैं, अच्छा सॉरी, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और एंगल ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई होता है। सो वैल्यूज पुट करें, एरिया ऑफ सेक्टर वैसे का वैसे आएगा क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, ये थीटा, थीटा लगा दिया। एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2 पाई। एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई कैसे हुआ, ये पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है हमारे पास और 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। यानी अगर आप 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, यानी लेट्स सपोज कि मैं 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देती हूँ पाई और 180 से। जब इन सबको सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो आपके पास 2 पाई रेडियन आंसर आएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया, 360 डिग्री की जगह 2 पाई रेडियन ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि ये इस तरफ चला जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आवर 2 थीटा आवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें पाई ये आपस में कट जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा वैसे का वैसे रह जाएगा और 2 पाई पाई से कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ ना, इसी फॉर्मूले को 1/2 आर स्क्वायर थीटा, मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना। इसको कोई मसला तो नहीं, ये भी इस फॉर्म में लिखूँ या इस फॉर्म में लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आ गया है। अब हमने इसी फार्मूले के ज़रिए से अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने यही फार्मूला पुट करना है और आपके आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, सो 9 से ऑनवर्ड जितने भी हम क्वेश्चन हैं 7.2 के, उनमें यही फार्मूला यूज़ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर उन्होंने आपको ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले ए पार्ट हम लोग कर लेते हैं। ए पार्ट के अंदर कुछ उसने कुछ इस तरह से एक सेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, एक सेक्टर है, उसका उसने क्या है, डिग्री 60 डिग्री है। यहाँ पर रेडियस जो है वो उसको 6 सेंटीमीटर आ जाता है। इसको उसने आर कहा है, ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट उसने कहा है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है। अब उसने कहा कि यहाँ इसी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली बात आ जाती है। आर उसने हमें दे दिए 6 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो चलिए 60 डिग्री को कर लो आप रेडियन में, तो पाया और 180 से मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू ये पाया और 3 रेडियन आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब हम लोगों ने क्या निकालना है यहाँ से, एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला मैं पीछे लिख के आ चुकी हूँ। सो 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। सो 1/2 आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है 6 का स्क्वायर और थीटा क्या हो जाएगा पाई/3। ठीक है, सो 6 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो वो 36 आ जाता है। सो 1/2 क्रॉस 36 क्रॉस पाई/1 3। ठीक है, सो
अब आप लोग क्या करोगे कि इन सबको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 1 द 2 2 1 द 2 2 8 द 16 हो जाता है, और 3 को आप जब आप करोगे तो 3 1 द 3 3 6 द 18 हो जाता है। तो अब बचा क्या आपके पास 6 पाई बचा। सो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, पुट कर दो 22/7। सो अब आप इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों पुट किया, क्योंकि एरिया का यूनिट यही होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यूनिट्स का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2 है, उसमें उन्होंने हमें कहा है कि जो थीटा बन रहा है वो अब बन रहा है 45, 60 की जगह क्या है 45 डिग्री, और रेडियस उन्होंने कहा है कि हमारे पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रेडियस है। सो सिंपली आप लोग यही वैल्यूज़ पुट करते जाओ और आंसर आ जाएगा। सो हम लोग पुट करते हैं जी 45 का उन्होंने कहा है, सो 60 की जगह 45 का आप लोग निकाल लेंगे, इसको पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा पाई बाय 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। सो रेडियस यहाँ पर आप 20 पुट कर दोगे 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर पाई बाय 4 हो जाएगा। सो आगे हम लोग मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। सो 20 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो वो आपके पास 400 हो जाएगा, क्रॉस पाई आवर 4। सो 4 1 द 4 और 400 1 द हो जाएगा। 2 को 100 से कट करेंगे, 2 1 द 2 2 5 द 10 और 0। सो 50 पाई ये आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू आप खोल दें तो 50 क्रॉस 22/7, then multiply all of them, then the answer will came out 157.14 centimeter square is due to the area. So always the unit of area will be centimeter square. Now let's do the question number 10. So in the question number 10 again you have to find out the area of sector. So area of sector, and the theta in this question is given is of 20 degree and radius is 7 centimeter. Now 1/2 r square means 7 square cross 20 cross pi/180, it will came out about pi/9. So put pi/9 here. Now 7 square is equal to 49 cross 49 cross pi/9. Now solving all of these terms, multiply all of them, the answer will came out 8.55 centimeter square. So this is the answer of question number 10. Now move on to the question number 11. अच्छा बच्चों, बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की, तो उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि एक लड़की है शहर और वो अपनी स्कर्ट बना रही है और उसकी स्कर्ट की शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इधर से लेकर इधर तक की जो लेंथ है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आपके पास आ गई है वो है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब आप पहले तो रेडियस निकाल लें। सो रेडियस आप कैसे निकालेंगे, 56 को 10 सेंटीमीटर पे आप डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आपके पास आएगा 66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि 80 डिग्री आ गया है थीटा हमारे पास, सो 80 को आप मल्टीप्लाई कर दें pi/180 के साथ, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 pi/9। अब देखें क्योंकि ये कट नहीं हो सकता है तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें। सो 4/9 क्रॉस 22/7। सो इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 88/63 रेडियन। सो अब थीटा भी आ गया, रेडियस भी आ गया। अब हम फार्मूला में पुट कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला ये होता है, इसमें पुट करो सारी चीज़ें, 1/2 आर हमारे पास है जी 66 सेंट का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा पुट कर दो 88/63। स्क्वायर निकालोगे और उस वैल्यू सारी पुट करोगे तो एंड में आपके पास आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो मैंने ये फार्मूले में जब कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं ना वो आ रहा है 3042.2, ठीक है। सो इतना बड़ा आंसर आ रहा है। सो आप लोग फिर देख लीजिएगा कि पॉइंट से पहले तक या फिर आप
30 आंसर लिख दीजिएगा, सो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। उसमें भी आपने एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करना है और थीटा आपको उन्होंने ऑलरेडी ही रेडियन में दे दिया है। सो थीटा आपको उन्होंने दिया है पाई/5, ठीक है, और रेडियस है 10। सो ये तो बहुत ही आसान सा है। सो 1/2 10 का स्क्वायर क्रॉस पाई/5, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और क्रॉस पाई/5 ये कट हो सकता है आपस में। 2/2 2 5 द 10 0 5/5 5 10 यानी 10 पाई आ जाएगा। सो 10 क्रॉस 22/7 कर दोगे आप लोग। सो 31.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 7.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है थीटा जो है वो हमारे पास, अच्छा थीटा नहीं दिया हुआ, हमने फाइंड आउट करना है थीटा भी, और एरिया उन्होंने हमें दे दिया है। एरिया हमारे पास है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। रेडियस हमारे पास 2 मीटर है। अच्छा देखिए, रेडियस 2 मीटर है ना, तो 10 मीटर स्क्वायर उन्होंने दी है। रेडियस की अगर वैल्यू मीटर में है तो एरिया भी मीटर में है, ये चीज़ का ध्यान रखना आपने। अब आप लोग पुट कर लें तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता था 1/2 पाई स्क्वायर और थीटा। अब थीटा नहीं है, एरिया की वैल्यू है, तो एरिया 10 है। 1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और थीटा वैसे को वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आप खोलेंगे तो वो 4 हो जाएगा। 2 सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा है 2 5 द 10 होता है। सो थीटा आपके पास 5 रेडियन, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम n इज इक्वल टू आर थीटा की वैल्यू पुट करके, फार्मूला पुट करके हम लोग, या एरिया का फार्मूला पुट करके अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को 7.2 पूरी आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7.3 के ऊपर जाएंगे और उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।